ਸਰਦਾਰ ਡੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਗਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕਸਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਨਹਾਈਏ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਵਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ 20-20 ਮੀਲ 30-30 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰੇਤ ਉੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੱਬੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਬ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਕੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਕੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਡੱਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਭੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਡੱਲਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਡੱਲਿਆ ਅੰਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਅੱਕ ਖੜੇ, ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅੰਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਦੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਲਹਿ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਦਬ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਖ ਦੇ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨਾ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਪਲਟਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ। प्यारे बच्चों और साथी संगत, जो कहानी अभी बाबा जी ने की, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कहानी का जो शीर्षक है वो गुरु के वचन, कि हमें किस तरीके से गुरु के वचन की पालना करनी चाहिए। इस कहानी के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि जब मुगलों की फौजें उनका पीछा कर रही थी और कोई भी उन्हें अपने घर नहीं ठहरने देता था। ऐसे समय एक सरदार डल्ला नाम का सेवक गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ। उसने गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत सेवा की और डल्ले के घर में गुरु गोविंद सिंह जी 3 माह तक लगभग रहे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 महीने बाद जाके अपनी जो उन्होंने ड्रेस लड़ाई के दौरान पहनी हुई थी, जो जैसे कमर बंद का मतलब जैसे कमर पे बेल्ट पहना होता वैसा था, तो उन्होंने वो 3 महीने बाद खोला था। बाबा जी ने हमेशा ही कहानी कहते हुए कहा कि अगर हम 2 दिन कपड़े नहीं बदले, नहीं नहाए तो हमारी क्या हालत होगी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 महीने बाद जाकर अपने कपड़े चेंज किए। सतगुरु हमारी सेवा का फल जरूर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी डल्ले की सेवा से बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए। वो 1-2 दिन ऐसे ही बाग खेत में घूमने गए। उन्होंने देखा कि उस इलाके में पानी की बहुत दिक्कत है, लोग भी 20-30 मील से जाकर पानी लेके आते हैं और इलाके में रेत ही उड़ती है। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने बाहर निकल के उनसे कहा कि देख, डल्ले से कहा, क्योंकि वो बहुत गरीब थे और अन्न पानी की बहुत कमी थी, लोग बहुत दुखी थे। तो उन्हें सब देख के कहा, देख डल्ले किस तरीके से नहरें बह रही। उनकी दिल में दया आई कि इस सेवक ने मेरी सेवा किया, क्यों नहीं इस इलाके को, इस सेवक को कुछ दिया जाए। तो डल्ला बोला, नहीं ये नहरें नहीं है, ये मृग तृष्णा है। क्योंकि गर्मी में जब रेत के टीलों में बाहर जाओ तो ऐसे लगता है जैसे पानी बह रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअल में मृग तृष्णा जैसे ही होता है। गुरु साहब ने फिर कहा, नहीं डल्ले ये नहरें ही हैं,
डल्ले ने फिर कहा, नहीं जी, मैं कैसे मान लूँ ये नहर है, यह तो मृग तृष्णा है, लग रहा है रेत में पानी नहीं है। फिर गुरु गोविंद सिंह जी बोले, देख डल्ले, आम के पेड़ किस तरीके से खड़े हैं। अब यहाँ पानी नहीं था, पानी की बहुत कमी थी और बियाबान एरिया था, तो आम होने का मतलब ही नहीं, नाम निशानी नहीं था वहाँ पे। इसलिए डल्ले ने कहा कि ये तो एक रेगिस्तानी पौधा है, जिसको हिंदी में शायद पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में उसको अक बोलते हैं, और जहाँ पानी नहीं होता रेत में ज़्यादातर वो वही होता है, और उसके फल लगे हुए थे। तो उन्होंने उसको देख के कहा कि देख डल्ले, आम लगे हुए हैं। तो डल्ले ने फिर कहा, मैं कैसे मान लूँ ये आम है, ये तो आपके पौधे हैं, रेगिस्तानी पौधा है। फिर गुरु साहब ने कहा, देख डल्ले, किस तरीके से हरी भरी गेहूं के खेत भरे पड़े, लहरा रही है गेहूं की फसल। डला नहीं माना और बोला, ये सब रेगिस्तानी घास है, ये कोई गेहूं नहीं है। गुरु साहब कहने लगे, तू कह दे कि यह गेहूं ही है, लेकिन उसने फिर कहा, मैं कैसे कह दूं, जी है ही नहीं, जब क्योंकि उसको यकीन ही नहीं था उसके उसके हिसाब से, और सच में वहां था भी कुछ नहीं, लेकिन गुरु की दया थी। गुरु उस वक्त दया करना चाहते थे। गुरु साहब ने हंसकर कहा, डल्ला, अगर तू हमारे वचन नहीं पलटता तो अभी यहाँ सब कुछ हो जाता, यहाँ नहरें भी चलती, आम भी होते, गेहूं भी होता, लेकिन तू नहीं माना। लेकिन जब तुम नहीं होगे तब यहाँ नहरें भी चलेंगी, आम भी होंगे, गेहूं भी होगा, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बाद में होंगे तो इन चीज़ों का सुख नहीं मान सकता, तेरे कर्मों में नहीं कुछ चीज़। उस इलाके के लोग अभी भी गुरु गोविंद सिंह जी का वचन याद करते हैं। अब भी, अब आजकल वहाँ पे जैसे बठिंडा का एरिया लगभग, अब आप कैसे कह सकते हैं, उस एरिया में अब सब तरीके की फसलें भी होती हैं, पानी की कोई कमी नहीं, नहरें भी चलती हैं। और माता पिता आमतौर पर गुरु गोविंद सिंह और डल्ले की ये दिए हुए वरदान को हमेशा याद करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सेवा के साथ गुरु की कही हुई बात पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए। गुरु वह कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, और गुरु कभी किसी की सेवा का कर्ज नहीं रखते। अगर कोई सेवक सेवा करता है तो उसके बदले जरूर उसको कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, लेकिन गुरु देख सकते हैं, हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें उनकी बात पर पूरा भरोसा करना चाहिए, उनके वचनों की कदर करनी चाहिए। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की है कि इन कहानियों के माध्यम से बाबा जी ने हमेशा हम सबको कोई ना कोई सीख देने की कोशिश की है। इस कहानी का भी यही है। हम अक्सर देखते हैं कि हम कहने में बहुत अच्छे सत्संगी होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुरु के भरोसे की भी बात बहुत करते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त या कभी, जैसे गुरु साहब ने उनको पहचाना, और हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे वक्त आते हैं जहाँ शायद हमारी एक परख होती है, जहाँ हमारा भरोसा परखा जाता है। हालांकि बाबा जी ने हमेशा कहा कि गुरु कभी भी सेवक का परख ना करे, इम्तिहान ना ले, क्योंकि हम दुनियादार से लोग इस लायक नहीं है कि गुरु की परख पे, गुरु की परीक्षा पे पास हो सके। लेकिन फिर भी बाबा जी ने इस कहानी के जरिए कहने की हमेशा कोशिश की है कि अगर आप गुरु पे भरोसा करते हैं, सिर्फ बात के सत्संगी नहीं बने, बुरे वक्त में भी जरूर याद रखें कि आपके पीछे महान गुरु की दया है, परमात्मा रूप गुरु की दया है, उनकी ताकत आपके पीछे काम करती है। मैंने हमेशा, जो बाबा जी अक्सर कहा करते थे और खासतौर पे चिट्ठियों में लिखवाया करते थे कि पर्दे के पीछे गुरु मुनासिब मदद हमेशा करते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के हिसाब से कुछ तो दुख हमें देखना ही पड़ता है। लेकिन उस वक्त भी अगर आप, हम सब अपना भरोसा बना के रखें और गुरु को याद करें, सिमरन करें, और बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि वो सूली की सूल बनाते हैं, दया करते हैं, और हमें बाद में हम पछताते हैं कि बुरे वक्त में हम ऐसे ही घबरा गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अक्सर गुरु कुछ नहीं होने देते, लेकिन फिर हर सत्संगी का, हम सबका फर्ज बनता है कि वो भरोसा, दया को प्राप्त करने का जो तरीका है वो सिमरन है, जो बाबा ये दया करके हम सबको नित्य नियम बनाया है। और इसमें हम में से बहुत से सारे ऐसे सत्संगी, ऑलमोस्ट सभी प्रेमी जो इस कार्यक्रम को नियमित रूप से अटेंड करते हैं, उनका नित्य नियम है, भजन अभ्यास भी करते हैं। आप किसी जगह जाके कह सकते हैं कि उनका भरोसा पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, अभी हमारी शुरुआत है।
इस भरोसे को, इस दया को प्राप्त करने के लिए हम और मेहनत करेंगे। अपने गुरु को के अनुसार हम जरूर भजन सिमरन